what that dream is that you have. I don't care how far-fetched it might appear to be, but here's what I know. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. I'm saying to you, your dream is possible. I do not believe that any of us have dreams that were not given to us for the purpose of accomplishing those particular dreams. So I applaud you for your dreaming, for your running toward your dream. I applaud you for believing in yourself. It's hard. It's not easy. It's hard changing your life. You are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain, a lot of defeats. But in the process of doing that, you will discover some things about yourself that you don't know right now. What you will realize is that you are greater than your circumstances, that you don't have to go through life being a victim, that you have greatness within you. What you'll realize is that you're more powerful than you can ever begin to imagine, that you are an uncommon breed. You have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. The people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream, that it's necessary, that you're relentless, that you have a plan of action, that you are creative. So, ladies and gentlemen, if you want a thing bad enough to go out and fight for it, to work day and night for it, to give up your time, your peace, and your sleep for it, if all that your dream and scheme is about it, and life seems useless and worthless without it, and if you gladly sweat for it and fret for it and plan for it and lose all your terror of the opposition for it, and if you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence, and stern pertinacity, if neither cold poverty, famish or cold, sickness or pain or body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grim you besiege and beset it, with the help of God you'll get it. यस। मेरी सांस फूल गई है ये देखते देखते, और इतना एनर्जी आ गया है अंदर पिछले 15 मिनट के अंदर। और जो चीज हम देखते हैं, मतलब वो अगर हम फील करते हैं, राइट, और वो जो बोलते हैं वो आग जब हमारे अंदर लगती है तब हमें सफलता मिलती है। जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, उनके अंदर एक फायर, एक आग, एक सपना, एक ड्रीम, अगर इसकी हम बात करें, राइट, तो मेरे ख्याल से पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन जो भी हमने अभी देखा, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि कुछ कुछ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसी फायर लगी, ये देखते ही एक एनर्जी जनरेट हुई कि नहीं हुई। मैं रविंद्र पटेल, अहमदाबाद से आप सभी आप सभी लोगों के साथ बात कर रहा हूं। और मैं आज जो बात करने वाला हूं, कुछ
सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात करूंगा, क्योंकि हमने जो निश्चय किया है यूसाना बिजनेस को करने के लिए और उसमें सफल होने के लिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने हमें ये बिजनेस बताया उस वक्त हमें कुछ ऐसा लगा था, ऐसी हमारा विजन क्लियर हुआ था, ऐसा हमें लगा था, ऐसी एक होप आई थी कि जो चीज हम आज तक हमारे इतने सालों में नहीं कर पाए, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी लगी, तभी जाके हमने हमारा इसके अंदर एंट्री लिया है, हमने एक्टिवेशन कराया है। और मेरे ख्याल से आज जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इंडक्शन प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आज इनके साथ ज्यादा बात करने वाला हूं। और जो लोग ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, मतलब इन अंदर ऑलरेडी तरीके से कर रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं, सिस्टम के अनुसार कर रहे हैं, इसको जो अपलाइन गाइडेंस देती है या सिस्टम हमारा जो बताता है उसके हिसाब से जो कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं आज बात करने वाला हूं। और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, हो सकता है हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर पाए, लेकिन सभी लोगों को अपने आप आंसर देना है, अपने आप को आंसर देना है। मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब बताऊंगा या बात करूंगा तो आपको अपने आप से सेल्फ टॉक भी करनी है, अपने आप से क्वेश्चंस भी आएंगे अपने ऊपर लगने वाले, और अपने आप को खुद ही आंसर करना है। तो क्या है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आप आंसर भी खुद ही करेंगे, तब आपको एक रास्ता क्लियर होता दिखाई देगा। राइट। अभी जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, राइट, एक गोल गोल, लेकिन ये आप फेमिलियर हैं इस सिंबल से, राइट। हमारा यूसाना का ये सिंबल है, ग्लोबल यूसाना हमारा जो है उसका एक सिंबल है। और ये आपको अगर एक नजर से देखेंगे तो फुटबॉल की माफक दिखेगा या राउंड दिखेगा, मतलब हमारे सपनों की तरफ हम जिस भी स्पीड में जाना चाहते हैं, तो यहां पे आपको रुकावट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये राउंड है, ये कहीं अटकता हुआ नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो ये अटकता हुआ होता, राइट। और ये अगर आप देखते हैं फुटबॉल की माफिक है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, इसको कहां पे ले जाना है, आपके गोल अपने आपके सपनों की तरफ ले जाना है, या बॉल जहां पे जाए वहां पे हमें पीछे पीछे इसकी हमारे बेसिक्स करने हैं, राइट। तो सवाल है कि हमारे ईशाना बिजनेस हमारे ईशाना बिजनेस के अंदर एक क्लैरिटी होनी जरूरी है और एक डायरेक्शन होना जरूरी है। कुछ प्रोसेस हमें डालना पड़ेगा। ऑलरेडी जो सक्सेसफुल लोगों ने यूसाना बिजनेस को किया है और उसके कुछ स्टेप्स तय किए हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी थी मिस्टर नटवरलाल, काफी सारे लोगों ने देखी होगी, राइट। वो जब वो गुफा के अंदर जाता है जेल के अंदर कुछ लोगों को बाहर लाने के लिए, लेकिन वो अमजद खान साहब ने कुछ नीचे जमीन के अंदर कुछ बॉम्ब लगाए थे, राइट। और वो रेड चश्मा पहन के वो स्टेप चेक करके जाना है, अगर एक स्टेप यहां पे गया एक स्टेप यहां पे गया, राइट, लेकिन अगर गलत स्टेप गया तो ब्लास्ट हो सकता है। तो वैसे ही हमारे सफलता के जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे तय किए गए हैं, और उसी के ऊपर अगर हम कदम रखेंगे, और जो रेड चश्मा है वो हमें प्रोवाइड होता है से संभव की तरफ से, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तरफ से, अगर वो चश्मा पहन के जो गाइडलाइन है कहाँ पे कदम नहीं रखना है कहाँ पे कदम रखना है, अगर एग्जैक्ट उस स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारा जो बॉल है हमारे सपनों की तरफ हमारे गोल की तरफ जा सकता है, राइट। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि हम डायरेक्शनहीन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते हैं,
हम पता नहीं है कि जब हम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स कितने कितने टाइप के आते हैं, वो अगर हम देखेंगे, राइट। लेकिन जब आपको वही दिन याद रखना है कि आपको जब पहली बार प्लान देखा और आपको लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूं, राइट, तो बाद में जो है जब आप करने जाएंगे तब छोटे 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 हर्डल्स मुझे ख्याल से आपके प्रायोरिटी को जो है वो फोकस डिस्टर्ब करेंगे और ट्रैक आपका बदलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको निश्चय करना है कि आपने आपने यूसाना बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, वाई, राइट। तो सबसे पहली बात है कि कौन से ऐसे आपके सपने हैं, हमारे कौन से ऐसे 7 स्टेप हैं, जो स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे, राइट। तो ये जो हमारा पावर ऑफ 100 05 SP सर्कल है प्लान के अनुसार और सफलता के, तो हमारा गोल और टारगेट है इसकी ओर जाना चाहिए। हमें सबसे पहले हमें गोल निर्धारित करना है कि हमें 1 वीक के अंदर हमारे एफर्ट से, खुद के एफर्ट से अचीव क्या करना है, टारगेट क्या सेट करना है, क्या गोल सेट करना है। तो मैं आज जो आपको बात करने वाला हूं, गोल सेटिंग की बात करने वाला हूं। मेरा पर्सनल गोल क्या है? गोल्ड जाना, रूबी जाना, एमरल्ड जाना, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर आगे। नहीं, मेरा गोल कभी भी वो नहीं रहेगा, वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आता रहेगा। मेरा खुद का गोल 1 वीक के अंदर पर्सनल मेरी एक्टिविटी से 105 SP जनरेट करना है। इससे बड़ा गोल मैं कभी नहीं बनाता हूं, कि नहीं किसी को सिखाता हूं। जो मैं कर रहा हूं मेरे 25 ईयर के एक्सपीरियंस से, जो मैंने आज तक किया है और जो सक्सेसफुल लोगों से सीखा है, वही चीज मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताइए कि इजी क्या है? गोल्ड का विजन लेके लिखने के बाद और उसे अचीव करना है। गोल हमारा विजन है, लेकिन उसके लिए करना क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सबसे पहले क्या करना है। आपको दिखाई देता होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो ये जो फ्लिप चार्ट है, क्या यहाँ पे जितने भी लोगों ने ज्वाइनिंग किया है, जो लोग नए हैं, राइट, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या ये फ्लिप चार्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, ये जो हमारा टूल है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र है यूसाना बिजनेस के सफलता के लिए, क्या वो हमारे पास है? सबसे पहला पॉइंट, अगर ये हमारे पास है तो हम इसको, जो बेसिक स्टेप्स है हमारे लोगों को बिजनेस में हम कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे हम, तो क्या हम इस टूल के माध्यम से क्या हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं? सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है, शो द प्लान करना। हमारे जब अपलाइन ये शो द प्लान करते हैं, संडे की हमारी जूम मीटिंग के अंदर जो भी सीनियर लीडर्स यहाँ पे आते हैं और जो शो द प्लान करते हैं, राइट, तो उसे हमें लिखना है, देखना है, बार बार देखना है। बहुत सारे शो द प्लान यूट्यूब वीडियो के अंदर बिजनेस प्रेजेंटेशन के रिकॉर्डिंग पड़े हैं, इसे बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। और हमें सफलता के लिए, जैसे आपको MD डॉक्टर बनना है तो कितने साल पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी किताबें रिफर करनी पड़ती हैं, कितने सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, राइट। और फाइनल एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि इससे कम मार्क नहीं आने चाहिए, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। तो हमारा बिजनेस इतना सिंपल है कि हमारे बिजनेस के अंदर आप इसको गीता बोलो, बाइबल बोलो, कुरान बोलो, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ये इसे ही हमें रटना है, इसे ही हमें सीखना है, इसे ही हमें बार बार
लोगों को बताना है, इसका ही हमें यूज करना है। जितना ज्यादा यूज इसका अगर हम करेंगे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चीज करनी है, राइट। लेकिन क्या यही एक रास्ता है? अच्छा, सारे लोग इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को बताएंगे और सारे जितने भी लोग यूसाना बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, तो सारे लोग क्या सफल होंगे? मेरा सवाल ये है। तो किसी भी फील्ड के अंदर एक सक्सेस स्टेप्स होते हैं, उसे फॉलो करने पड़ते हैं। सेम चीज यहां पे भी लागू होती है, राइट। तो परसेंटेज रेशियो जो है, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो ये हमें बढ़िया तरीके से बार बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यहां पे क्या है कि एक्चुअल में ये सिंसियरली सीखने की कोशिश कौन करेगा? प्रायोरिटी सेट कौन करेगा? डेली जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं वो करेगा कौन? सवाल ये है, राइट। तो हमारे जो 7 स्टेप्स हैं, ये फॉलो कौन करेगा? हमारे जो 7 स्टेप्स हैं, इसमें से सबसे पहला स्टेप्स कौन सा है? तो कौन सफल होगा हमारे बिजनेस में? कौन कौन सफलता पाने के लिए संघर्ष करेगा? ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, राइट, तो सबसे पहले उसको अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा, अपना पर्पज, अपना ड्रीम, अपना सपना, राइट। तो जब भी हम बिजनेस प्लान देखते हैं, जब भी हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं, तो सबसे पहले जो बात होती है वो किस चीज की होती है? शुरुआत हमारे बिजनेस प्लान की कहां से होती है? हमारे फ्लिप चार्ट के अंदर कौन सा फर्स्ट पेज बताया गया है, राइट। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला पेज है ये, ड्रीम ड्रीम यहाँ पे बताए गए हैं, राइट। तो सपनों से शुरुआत होती है। तो क्या जब ये ड्रीम बताए गए थे हमको, तब हमें कुछ लगा था? राइट। तो हमारे सपने कौन से हैं? हम कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? जरूरी नहीं है कि जो मेरा सपना है वही आपका है, आपका है वही आपकी डाउनलाइन का है। अपनी गोल और टारगेट और अपना सपना सबका अलग अलग है। किसी का क्या पेन है मुझे पता नहीं है। और शुरुआत करते हैं हम जब बिजनेस प्लान की, तब हम बताते हैं, लग्जूरियस कार बताते हैं, लग्जरी बंगलो बताते हैं, हम बैंक बैलेंस की बात करते हैं, राइट। ये सारी बात करते हैं और उसका कंपैरिजन हम एप्पल के साथ करते हैं। ये सारी बात सही है, बिल्कुल सही बात है, राइट। लेकिन फिर उसको जब हम स्टार्ट करते हैं एक होप के साथ, तो फिर अटक कहां पे जाते हैं? जो नए लोग हैं, इसको अगर अपने साथ कनेक्ट करना चाहें, तो उनका मतलब यह होता है कि प्रायोरिटी सेट करने की बात है। हमें अटकना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि हमने जो निर्णय किया है आगे बढ़ने के लिए, इसमें हमारी रुकावटें आनी नहीं चाहिए। तो रुकावटें कौन कौन सी आती हैं और हम कहाँ अटक जाते हैं? जो लोग सफल होते हैं वहां पे अटकते नहीं है, और हम कहाँ पे अटक जाते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजें होती है हमारे लाइफ के अंदर, राइट। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे हर्डल्स आते हैं, ऐसी ऐसी प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाती है, वहां पे हमें स्ट्रांग रहना है। ऐसी कौन सी प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाती है जब हम इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं? बहुत सारे लोगों इसका एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, राइट। तो सबसे पहली जो हर्डल्स आती है इसके अंदर, वो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, बोले फाइनेंशियल कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहती आती है, राइट। तो फाइनेंशियल चैलेंज एक हर्डल है, तो इसे कैसे मैनेज करना है, राइट। वो चैलेंज जो है उसे कवर करने के लिए तो हमें ये बिजनेस करना है, ये समझ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक्चुअली में हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं, और उसी वजह से अगर हम अटके हैं, तो इसको हमें क्लैरिफाई करना है कि क्या मैं इसकी वजह से अटकने वाला हूं, क्योंकि मैं लाइफ में चाहता क्या हूं? हमारा सपना पूरा करना। सपना पूरा कैसे होगा? तो क्या फाइनेंशियल चैलेंज है तो वो कब तक रहेगी? ऐसा कौन सा काम करेंगे 5-10 साल, वो चैलेंज चले जाने वाली है, राइट। तो सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि हमारे सपनों की एक लिस्ट बनानी है, और इसमें से प्रायोरिटाइज करना है 3 सपने।
ज्यादा सपने नहीं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। ऐसे तीन चीज कौन सी है कि जिसके बिना जीना हराम है। सबसे पहले उसको लिखना है, उसको पिक्चराइज करना है, एक विजन बोर्ड बनाना है, और इसको हमारे दीवार के अंदर, कपबोर्ड के अंदर लगाना है। राइट, हमारे मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे लगाना है, उसको स्क्रीनशॉट लेके ऊपर लगाना है, वॉलपेपर के ऊपर लगाना है। हमारी बैग है, हम जहाँ पे ज्यादा समय निकालते हैं, हमारे बाथरूम के अंदर लगा सकते हैं, उसकी दीवार पे लगा सकते हैं। जहां जहां हमारा ज्यादा रहना होता है वहीं पे अगर इसको हम पिक्चराइज करेंगे, जो हमारे मेन तीन सपने हैं उसको अगर हमने लगा दिया, राइट, फिर हमें क्या करना है? हमें अपने आप को सेव करना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हर्डल से। छोटे 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 हर्डल्स ऐसे आएंगे, प्रायोरिटी हमारी ऐसी इधर की उधर हो जाएगी। तो जो भी, क्योंकि चैलेंज भी सबके अलग अलग होंगे लाइफ के, और एक व्यक्ति, आप इस दुनिया में बताइए, मेरे सामने लाइए कि इसकी लाइफ में चैलेंज नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बताइए, और उसकी जो चैलेंज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी जो लाइफ की जो चैलेंज है वो आप सहन नहीं कर सकते, उसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने हर एक व्यक्ति को इतना ही चैलेंज दिया है, उतनी ही हर्डल्स दी है कि वो बंदा अपने आप खुद उसे सॉल्व कर सके। तो ज्यादातर लोग होते हैं, वो अपने क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या चैलेंजेस है, उसकी लिस्ट नहीं बनाते हैं। हमको पढ़ाया जाता है कि आप सपनों की लिस्ट बनाओ, लेकिन चैलेंजेस क्या है? तो हमें एक कागज में चैलेंजेस लिखने हैं, एक दो तीन चार पांच सात, कितना, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से लाइफ में रोक रही है। फिर हमें क्या करना है? दोनों चीज एक पेपर पे ड्रॉ करनी है। लेफ्ट राइट में आपके सपने लिखने हैं, राइट साइड में आपको लिखना है आपकी हर्डल्स, चैलेंजेस। अभी आप मुझे बताओ कि अगर आप आपका फोकस चैलेंजेस की ओर करेंगे तो सपना कैसे पूरा होगा? अगर आपका फोकस हर्डल्स के ऊपर है तो क्या आप सपना पूरा कर पाएंगे? अगर हर्डल्स के ऊपर आपका फोकस है तो हर्डल्स आपकी लाइफ में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी फोकस पूरी वहीं पे है, आपकी पूरी एनर्जी वहीं पे लग रही है। अगर आपका फोकस सपनों के ऊपर है और वो आपको सोने नहीं देता है, और अंदर से आग लग रही है, और लगता है कि नहीं, मैं कुछ लाइफ में करना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, राइट, मैं किसी भी हालत में इसको करना चाहता हूं, तो जो हर्डल्स हैं हमारे, राइट, वो मेरे ख्याल से आपको अवरोध नहीं करेंगे, आपके हर्डल्स नहीं बनेंगे। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हर्डल्स नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके सपने नहीं है। जितने भी लोग हैं, जिसकी सांस चल रही है, जितने भी इस दुनिया में लोग बस रहे हैं, जीवित हैं, जिंदा है, सभी लोगों के सपने हैं, सभी लोगों के हर्डल्स हैं। लेकिन सफल और असफल व्यक्ति के बीच में क्या ऐसी पतली दीवार है? जो लोग सफल हैं वो हर्डल्स को फोकस नहीं करते हैं, और जो लोग सफल हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के ऊपर फोकस करते हैं। और जितने भी लोग सफलता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका जो फोकस है, उनकी जो प्रायोरिटी है, उनकी जो एनर्जी है, 100% वो सपनों के ऊपर नहीं लगा रहे। हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम वाकई में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यूसाना का प्लेटफॉर्म और इस व्हीकल का यूज करके, यूसाना हमारे लिए क्या है? एक व्हीकल है। ये एक ही व्हीकल है जो हमारे सपनों तक ले जा सकता है, राइट। अगर ये हमने क्लियर नहीं किया, अगर मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो आप कितने दिन यूसाना बिजनेस के अंदर
ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा वो बंदा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ ना कुछ हर्डल आएंगे, आउट हो जाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए। 300 400 लोग मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने हैं, वो नंबर गेम है, वो टिक नहीं पाते हैं इसके अंदर। हो सकता है आपने भी ऐसी फेल्योर का आपके लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति हमारे साथ आती है, हमारी फैमिली में जुड़ती है, उसके साथ ये क्लैरिटी करना जरूरी है, सबसे पहले बात करनी है, राइट। अगर ये क्लियर हो गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर ये क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको यूसाना बिजनेस में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर ये क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा विश्वास, बिलीफ बढ़ेगा। बिलीफ बढ़ेगा तो बिलीफ बढ़ेगा क्यों? एक व्यक्ति का बिलीफ टॉप ऊपर है और एक बंदे का बिलीफ नहीं है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक बनता है नहीं, डन डील, ये बस मैं 90 डेज में ये करूंगा, 180 डेज में ये करूंगा, एक साल में ये करूंगा, 2 साल के अंदर मेरी ये क्लैरिटी है, 3 साल के अंदर मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा। जो टारगेट बोलता है वो करता है, राइट। ये जो फर्क है वो किस चीज का फर्क है? ये बिलीफ का फर्क है। ये बिलीफ आया कैसे? क्योंकि उसका गोल क्लियर है। गोल क्लियर है तो सारी जो सिस्टम है उसे फॉलो करेगा। मीटिंग में भी आएगा, ट्रेनिंग भी लेगा, प्रोडक्ट के बारे में भी जानेगा, गूगल पे भी सर्च करेगा, कंपैरिजन भी करेगा, फील्ड में भी जाएगा, डेली प्लान भी बताएगा, राइट। वो सारी जो एक्टिविटीज है इसके अंदर वो अपने आप को समर्पित कर देगा। बिलीफ जिस दिन टॉप ऑफ द टॉप, 100%, नॉट 99.90%, अगर वो बिलीफ आ गया अंदर, अंदर जो जो भरा है वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है? बिलीफ। बिलीफ है कि नहीं है? क्योंकि सपना क्लियर नहीं है। मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सपना क्लियर नहीं है। ये कनेक्शन है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। सफलता और असफलता के बीच में क्या रुकावट है, आप मुझे बताइए। कौन से हर्डल्स आते हैं लोगों को? बहानेबाजी कौन करता है? कौन कमिटेड है? वो कहां से तय होगा? ये थर्मोमीटर है, चेक कर सकते हो आप टेम्परेचर से। कोई भी व्यक्ति बोलता है, उसकी स्पीच पैटर्न से, आपकी डाउनलाइन कोई भी आपको फोन करेगी, राइट, आप राइट, तो पता चल जाएगा कि थर्मोमीटर से चेक करेंगे इसकी एनर्जी लेवल क्या है, वो आपको पता चल जाएगा सर, राइट। तो ये बिलीफ लेवल है ना, उससे हमारे क्या चेंज आएगा? हमारे एटीट्यूड में चेंज आएगा। हमारे एटीट्यूड में चेंज आएगा क्योंकि भरोसा है। भरोसा क्यों है? क्योंकि हमारा सपना क्लियर है। सपना क्लियर है, इसीलिए भरोसा आया। भरोसा है तो हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, हम पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल एनर्जी आ गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, क्लैरिटी आ गई, दिख रहा है। हम बोलेंगे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। वो एटीट्यूड हमारा अगर पॉजिटिव है इस बिजनेस को करने के लिए, राइट। ये कैसी कनेक्टिविटी है? हम कहां पे फंस जाते हैं, कहां पे हमारा जो लक्ष्य है वो इधर उधर हो जाता है, और कहां हम भटक जाते हैं, राइट। अब चलेंगे ना, तो एक विनिंग बंदा जा रहा है, जो विनिंग एटीट्यूड वाला बंदा, जो जैसी उसकी चाल है वो चेंज हो जाएगी। वो बात करेगा, उसकी लैंग्वेज में दम होगा, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होगा, उसकी बैक ऑफ द माइंड में जो है, क्योंकि उसका ड्रीम क्लियर है, उसको भरोसा है। वो भरोसा, कोई भी वर्ड बोलेगा सामने वाला बोलेगा नहीं यार, ये कॉन्फिडेंट आदमी है। वो एटीट्यूड कहां से लाएंगे? आप मुझे बताइए, एटीट्यूड कैसे चेंज होगा?
हमारा एटीट्यूड अगर सही नहीं है, अगर हम ये प्लान बताते हैं, ये फोल्डर घुमाते हैं, विदाउट एनी एटीट्यूड, विदाउट एनी बिलीफ, विदाउट एनी ड्रीम, ज्वाइनिंग होगी। एक बंदा जब प्लान बताता है, 100% रिजल्ट आता है, सामने वाला ज्वाइन ही कर लेगा। और 50 प्लान बताओगे, एक दो आएंगे ढीले ढाले लोग। ये दोनों में फर्क क्या है? प्लान सेम है, सेम प्लान है, फिक्स है, सबके साथ एक ही है, सबके लिए अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता एक ही किताब है। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है, समझो आप। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये एटीट्यूड का फर्क है, राइट। अब बोलते हैं तो फायर निकलनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस निकलना चाहिए। डॉक्टर मायरन वेन्स का जब नाम देते हैं, जब हम साइंटिस्टों का नाम देते हैं, हम जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जब बात करते हैं, जब हम कोर एसेंशियल के बारे में बात करते हैं, जब हम कोकून 100 के बारे में बात करते हैं, जब हमारी जो वो जो चीज है ना, वो हमारी डीली डाली नहीं होनी चाहिए, डीली डाली नहीं होनी चाहिए। वो फायर निकलनी चाहिए, वो आग निकलनी चाहिए। वो आग लाएंगे कहां से? कितने पैसे में आग मिलती है? रेडीमेड आग मिलती है? नहीं, आग अंदर से होती है। अंदर से आग लगती है। हाँ, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट। तो एटीट्यूड दमदार होना जरूरी है। सामने वाला देखेगा कि यार ये बंदा कहां पे जा रहा है, ये क्लियर है अपने रास्ते पे जाने के लिए, इसका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं भी इसके साथ आगे निकल जाऊंगा। हाथ पकड़ने वाले लोग बढ़ जाएंगे सर आपके, आपको फॉलो करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपको फॉलो ही कोई नहीं करेगा। ढीले ढाले लोगों को कौन फॉलो करता है सर? आप मुझे बताइए ना, राइट। तो इसके बाद क्या है? वो हमारे संस्कार बन जाएंगे, वो हमारा कल्चर बन जाएगा, वो हमारे क्या बोलते हैं, बोलेंगे तो भी वही निकलेगा, सोचेंगे तो वही, सोएंगे तो भी वही। 24/7 हमारे दिमाग में क्या निकलेगा? ओनली एंड ओनली यूसाना में सफलता कैसे पानी है, उसके ही थॉट आएंगे। पूरी थॉट प्रोसेस आपकी चेंज हो जाएगी। और थॉट प्रोसेस जिस दिन आपकी चेंज हो गई, उस दिन आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको याद करेगा तो उसको आपके पिक्चर के सामने यूसाना, ये यूसाना यूसाना ही दिखेगा। मैं संदीप सर को जब विजुलाइज करता हूं, मैं देखता हूं आंखें बंद करके संदीप सर एंड पावन, तो यूसाना के ब्रांड एम्बेसडर दिखते हैं मुझे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे यूसाना फैमिली में ऐसे संभव में बहुत सारे एग्जांपल। वो कैरेक्टर मेरा होना चाहिए, क्या मैं वो बिल्ड करने के लिए तैयार हूं? कोई भी व्यक्ति अगर मुझे, मेरे बारे में सोचे, तो मैं रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, मेरा मेरा यूसाना का बैकग्राउंड दिखना चाहिए। भले चाहे मेरा जो भी बिजनेस चल रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरा गोल ये है, वो बाय प्रोडक्ट है, साइड में चलता रहेगा। मेरा लक्ष्य क्या है? क्लियर है। क्या करना है लाइफ के अंदर, इसमें आगे बढ़ना है। आप तैयार हैं चेंज करने के लिए, प्रायोरिटी सेट करने के लिए? अंदर हमारा जो है संस्कार, सोचेंगे तो इसकी ही सोच आनी चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसके बाद वाला क्या? अगर ये हमने फॉलो कर लिया तो मेरे ख्याल से अपने आप हमारी प्रायोरिटी सेट होगी। अगर प्रायोरिटी सेट करनी है, अगर हमारे जितने भी हर्डल्स हैं, इसमें से अगर हमारे शिफ्टिंग करना है 100% सपनों की तरफ, प्रायोरिटी सेट करनी है, तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर दी, दो काम एक साथ आएंगे, एक ही टाइम पे आएंगे, आपको दोनों इंपॉर्टेंट लगेंगे। लेकिन दोनों में से जब एक चुनने की बात आएगी, तब आपको कौन सा चुनना है? कौन सा प्रायोरिटी, कौन सा ऐसा काम है जो आपको सपनों की तरफ ले जाएगा? आपको उसे सिलेक्ट करना है।
बाकी को छोड़ देना है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके सपनों की तरफ कौन सा रास्ता आपको ले जाएगा, कौन सा ऐसा काम है जो आपको सपनों की तरफ ले जाएगा। तो प्रायोरिटी आपकी हमेशा वही रहनी चाहिए, जिस काम करने से, जो समय देने से सपना हमारा पूरा होने की हमें रास्ता मिल रहा है, उसे वहां पे हमें पर प्रायोरिटी सेट करनी पड़े। अगर ये काम कर लिया हमने, मेरे ख्याल से, तो आप मुझे बताइए ना, अगर आप प्रायोरिटी भी सेट करते हैं, आपके कल्चर हो गया, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया, आप स्ट्रॉन्ग बिलीफ लेवल है, आपको कड़कड़ाहट अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, मतलब वो ऐसी रट्टा मार दिया है प्लान का, ऐसी स्किल डेवलप कर दी है, एक प्लान, दो प्लान, तीन प्लान, चार प्लान, 10 प्लान, 25वें प्लान में और 27वें प्लान में फर्क है कि नहीं है? पहला प्लान और 25वें प्लान में फर्क है कि नहीं है? और जब आपका 100वां प्लान होगा, वो कैसा होगा, 1 से 10 वाला होगा या 100वां टॉप ऑफ द टॉप होगा? तो जितनी ज्यादा बार आप प्लान बताएंगे, जितनी वो आपकी पकड़ आती जाएगी, आपकी एक एक आप बोलेंगे ना, तो इतनी इतनी बढ़िया तरीके से बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस दिन, एक पंचलाइन है, आप याद रखना, शो द प्लान प्रायोरिटी के साथ जो आप करते हो ना, जिस दिन आप प्लान बताओगे खुद, तो सफलता नहीं मिलेगी। दोबारा रिपीट करता हूं, जिस दिन आप खुद प्लान बताओगे, उस दिन सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने प्लान बताना चालू किया, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि डे वन आपने कार चालू किया, स्टार्ट किया, एक्सीलेटर दबाया, उस टाइम पहली बार जब आप कार ड्राइविंग पे बैठे थे, राइट, तो आप जब कार ड्राइविंग कर रहे थे, तब कार कौन चला रहा था? आप। 15 दिन बाद कौन चला रहा था? आप। 1 महीने बाद कौन चला रहा था? आप। 2 महीने बाद कौन चला रहा था? आप। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आपको बराबर पता ही नहीं चला, आज की तारीख में जो आप कार चला रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, कोई भी एक व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो वो व्हीकल किसने चलाया? आपने चलाया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चलाया? रेड सिग्नल आया तो ब्रेक किसने लगाई? आप मुझे बताओ। आपको पता ही नहीं है, ब्रेक भी लग गया, आप भी क्या गया, आगे गाड़ी की तो आपने ओवर, आप कहीं और हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जहां पे जाना है वहां पे ले जा रहा है। वो ही चीज हमारे इस शो द प्लान के अंदर लागू होती है। अगर उस एटीट्यूड से, उस लेवल पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस दिन प्लान बताना चालू करेगा, तो समझ लेना आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और वो होगा कब? जब आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, डेली 2 प्लान बताएंगे, बेसिक स्टेप्स करेंगे, आप प्लान बताना सीखेंगे, इसके ऊपर बार बार बताएंगे, बार बार नो सुनेंगे, बार बार नो सुनेंगे, राइट। आपको बार बार मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे अगर आप वो प्लान को ले जाते हैं और प्लान बताना आप चालू करते हैं, करना कुछ नहीं है, एक ही है, एक ही किताब है, बस बार बार बोलनी है, बार बार बोलनी है, शुद्ध प्लान करना है। और पहले 10 लोगों में तो ऐसे ही बताना है कि जैसे मेरा प्रैक्टिस हो गया, उसका यूज करना है। भले साइन नहीं करेगा, कोई बात नहीं, 50 लोग साइन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो प्लान बताना सीख गया। मैंने उनके हाथ पे मैंने हाथ साफ कर लिया, प्लान बताना सीख लिया मैंने 100 लोगों में। अभी मेरी बारी है, अभी देखो कैसे ज्वाइनिंग होती है, राइट। तो ये करेगा कौन? जो प्रायोरिटी सेट करेगा। प्रायोरिटी कौन सेट करेगा? जिसके अंदर घुस गया होगा, कल्चर, संस्कार बन गए होंगे। संस्कार कैसे बनेगा? एटीट्यूड से। एटीट्यूड आया कहां से? बिलीफ से। बिलीफ क्यों आया? क्योंकि सपना क्लियर है, भरोसा है। यस, ये पूरी साइकिल है। आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप करते जाएंगे, तब जाके अगर आप बेसिक्स करेंगे, आप प्रायोरिटी सेट करके लेने के बाद जब आप बेसिक्स करने स्टार्ट हो जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट करना होना चालू हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ, कोई बता सकता है मुझे कि मुझे आगे जाने से कौन रोक पाएगा? आपको कौन रोक पाएगा? आप मुझे बताओ। दुनिया की कोई ताकत है? आप खुद, बाकी कोई नहीं। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है,
इस बिजनेस में कोई असफल हो। मैं गारंटी करता हूं सर। अगर इस प्रोसेस से आप निकले, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लाओ, एक पे साइन मैं करता हूं, मैं गारंटी करता हूं आपको सर। राइट। सवाल क्या है? सवाल है कि थोड़ा सा हमें क्लियर होना है, थोड़ा सा हमारा जो फोकस है वो ड्रीम के ऊपर करना है। छोटे छोटे चैलेंज आते जाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है इस बिजनेस के प्रति। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नॉलेज से बढ़ेगा, माहौल से बनेगा, रेगुलर मीटिंग में आएंगे तब बढ़ेगा। हम लगातार, जो मैंने आपको बताया, यूट्यूब के अंदर इतने सारे वीडियोस है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। हमारा जो प्रायोरिटी है अगर हमने सेट कर लिया, हमारा जो पूरा अंदर उतार लिया अंदर, मतलब हमारे डीएनए तक ये बिजनेस पहुंच गया। राइट। मेरे ख्याल से अभी बेसिक करो आप, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। राइट। एक्चुअली बेसिक्स क्या है? अभी ये काम करो आप। पहले सपना अगर क्लियर नहीं है तो पहले फोकस करो सपने के ऊपर, प्रायोरिटी के ऊपर, उसकी एनालिसिस करो, और फिर आप निर्णय लो, निश्चय करो, डिसीजन लो कि मुझे फोकस कहाँ करना है। छोटी छोटी चीजों में करना है या मेरे सपने के ऊपर करना है? हर्डल्स पे करना है या सपने के ऊपर करना है? अगर हर्डल्स के ऊपर करोगे तो हर्डल्स बड़े हो जाएंगे, सपने पीछे रह जाएंगे। अगर सपनों के ऊपर करोगे तो हम आपकी चैलेंज छोटी हो जाएगी। अगर प्रायोरिटी आपने सेट की तो सबसे पहला गोल क्या है आपका, पता है आपको? आपके चार ABCD जो होते हैं ना, फटाफट, दो हैं, दो में डेवलप हो रहा है, नो, चार है, अटकना है आपको वहां पे। चार पहले कंप्लीट करो, चार एक्टिव लाइन आप इसके ऊपर प्रायोरिटीज करो। राइट। और फिर क्या करना है? खुद के लिए तो हमने प्लान बता दिया। राइट। तो उसके बाद क्या करना है कि डाउनलाइन के जो है उनको, उनके लिए काम नहीं करना है, उनके साथ काम करना है। आपको क्या करना है? डाउनलाइंस जो होते हैं हमारे यूसाना फैमिली में, जो लोग जुड़ते हैं, उनके लिए आपको काम नहीं करना है, लेकिन उनके साथ आपको काम करना है। साथ काम करने का मतलब क्या होता है कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, आप भी सीखो, मैं भी ऐसे कर रहा हूं, आप भी सीखो। फोकस क्या होना चाहिए? वहां पे जाके मैं पीवी लेके आऊंगा, चार लोगों को ज्वाइनिंग करूंगा तो मेरी पीवी ये हो जाएगी, नॉट लाइक दैट। हमारा इंटेंशन वहां पे क्या होना चाहिए? डुप्लीकेशन का। जब तक वो सीखेगा नहीं, उसके लिए अगर आपने काम किया, राइट, अगर उसके साथ काम किया, ये दोनों में फर्क है। ये चीज बारीकाइयों से सीखनी पड़ेगी। ज्यादातर जो लोग, जिन लोगों को प्लान बताना आता है, उनका इंटेंशन क्या है वो भी हमें थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। जो नए लोग आए हैं, डे वन से उसको सीखने की जरूरत है, ताकि जो लोग गलती करके थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो हमारा समय बच जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सीखना क्या है? 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग्स लेने हैं, एक एक प्रोडक्ट की थोड़ी जानकारी लेनी है। क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन का जो हार्ट है वो प्रोडक्ट्स है। जितनी जानकारी आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगे, जितनी मास्टरी आप प्रोडक्ट के बारे में लोगे, जितनी मास्टरी अंडरस्टैंड करने में, अपना बिलीफ बढ़ाने में, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, लोगों को जब आप सर्व करते हो, लोगों को जब प्रोडक्ट के बारे में से शेयर करते हो, राइट, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, आप साइंटिस्टों के बारे में बताते हो, एथलीट्स के बारे में बताते हो, राइट, यूसाना ने कैसे डेवलप किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, इसकी कैसी बायोअवेलेबिलिटी कैसी है, इसकी कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वैसी वैसी आपकी बिलीफ लेवल बढ़ेगी। तो वो सारा एटीट्यूड, वो अंदर कल्चर, वो सारी प्राय, वो सब उसमें कनेक्शन आएगी। लेकिन अगर ये काम आप नहीं करोगे, पोस्टमार्टम नहीं करोगे, अगर एनालिसिस नहीं करोगे, इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, नेहा मैडम ने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी। सेल्स, हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, राइट, वो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है। तो जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग आती है, हो सकता है 11 बजे मेरा ऑफिस का टाइम है, तो मैं हो सकता है वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाता काफी सारी, लेकिन रिकॉर्डिंग जैसे आती है, मैं रात को या मॉर्निंग जब बैठता हूँ तो वो मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। अगर मुझे लगता है कि ये है, तो मैं बार बार उसको
टेबल पे ही चालू कर देता हूँ, और मैं अपने आप को अभी आज की तारीख में भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2 बार तो वो ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली, और मेरा टारगेट है कि हर एक वीक में एक बार मिनिमम इसको मैं रिपीट करते जाऊं, क्योंकि ये मैं तो वेट कर रहा था कि ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मेरे ख्याल से स्टेप्स क्या है, प्रायोरिटी क्या सेट करनी है, प्रोडक्ट दो लेने में क्या हमारी प्रायोरिटी है, लेना है यानी कि लेना है, हमें आदत डालनी है, हमारी फैमिली को आदत डलवानी है, शुरुआत तो हमसे होगी। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, जितनी जानकारी होगी आप 2 वाक्य 2 पंचलाइन बोलेंगे, सामने वाला क्लिक हो जाएगा। अगर ये काम हो गया तो क्या हो गया, हमें बात किसको करनी है, नॉलेज तो आ गया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो हो गई, हमने प्लान प्लान के बारे में हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया, कैलकुलेशन तो हमें आ गया, लेकिन अभी क्या है कि बताएंगे किसको। 200 लोगों की लिस्ट, 50 50 50 50 के लॉट पे, ऑन द स्पॉट आपके, किसको आपको 10 फोन कॉल करने हैं पर डे के, पावर ऑफ 10 में आपका बिलीफ होना चाहिए। पावर ऑफ 10 वर्क भी करता है। आपके पास 2 प्लान बताने का टाइम है, अगर 10 लोगों को आप फोन कॉल करोगे, टाइम फिक्स करने की कोशिश करोगे, कुछ बताओगे कि यार मैं एक इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी, 25 कंट्री में सक्सेसफुल रन कर रही है, इंडिया में बिजनेस पार्टनर पार्टनर ढूंढ रही है, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट अगर आप सोच के रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, अपलाइन की हेल्प लेके अगर आप वो स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं मेरे ख्याल से, राइट, तो 10 फोन कॉल करके आपको इन लोगों के साथ बात करनी है, और करना क्या है, चाय पे बैठना है, कॉफी पे बैठना है, सीसी सीसीडी में बैठना है, आपकी ऑफिस पे बैठना है, उसके घर पे बैठना है, आपके घर पे बैठना है, राइट। तो अच्छे सारे फ्रेंचाइजीज होते हैं, वहीं पे कहीं भी एक जगह पे आपको आधा घंटा उसके साथ निकालना है, उस वक्त आपके पास ये फ्लिप चार्ट होना चाहिए, राइट। जब बात करते हैं, लिस्ट ही नहीं है तो मैं आज किसको फोन कॉल करूंगा, क्लियर ही नहीं हूं मैं, सिस्टमेटिक नहीं हूं मैं, ऑर्गेनाइज वे में नहीं हूं मैं, राइट। मेरा साड़ी का शोरूम है, उसमें मैं जो स्टॉक करता हूं, कौन सी कैटेगरी का मैं करूंगा, आप मुझे बताओ। तो मैं क्लियर होना चाहिए ना कि कौन सी कैटेगरी की, कौन सी रेंज में मुझे कौन से टाइप की मुझे कलेक्शन करनी है, फैशन में जाना है, वेडिंग में जाना है, या कौन सी कैटेगरी में मुझे स्टॉक करना है। तो मेरा तो टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि मुझे किसको पिच करना है। तो उस टाइप की रेंज मेरे पास, कौन सी टाइप की रेंज है, तो कौन से टाइप की मेरे को, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हम ये करते हैं सर, हर एक बिजनेस के टारगेट ऑडियंस, टारगेट क्लाइंट होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी वो करते हैं, हमारे रियल एस्टेट में भी, हमारी कौन सी रेंज की प्रॉपर्टी है, कौन सी एरिया में प्रॉपर्टी है, उस टाइप का जो हमारा जो बायर कौन है, उस टारगेटेड लोगों को ध्यान में रखते हुए, जब फेसबुक में भी वो लोग एडवर्टाइज चलाते हैं, तो वो भी टारगेट सिलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सी एज ग्रुप वाला चाहिए, कौन से एजुकेशन वाला चाहिए, कौन से बैकग्राउंड वाला चाहिए, वो भी एक सिलेक्ट करके वो एडवर्टाइज चलाते हैं सर। तो हमें भी वो ही प्रोग्रामिंग करनी है कि मुझे जो लिस्ट बनानी है, राइट, तो कौन से टाइप के लोगों की बनानी है, 200 लोगों की, और उसमें से 10 फोन कॉल अगर मैं करता हूं, अगर मैं टारगेटेड क्लियर हूं, ऑडियंस मेरा क्लियर है, मेरी लिस्ट प्रायोरिटाइज की हुई है, और उसको मैं फोन करता हूं, आप मुझे बताओ, दिल से बताओ, वाकई में बताओ, अगर 10 फोन कॉल करते हो तो 3 4 तो मेरे ख्याल से चाय पीने के लिए आपके साथ लोग तैयार हो जाएंगे। हमें बस इतना ही काम करना है, लिस्ट है तो क्या होगा, हम इनवाइट कर पाएंगे। हमारे पास लिस्ट नहीं है तो इनवाइट किसको करेंगे। हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, यूसाना यूसाना खेलते रहते हैं। एक्शन क्या करना है, फोन करना है, फटाफट करके, ब्रेकफास्ट और जो भी चलता है उसके टाइम पे, पूरे दिन का आपका 2 प्लान का टारगेट होना चाहिए। आपने फोन कॉल किया, फटाक लेके आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, टाइम सेट हुआ, प्रायोरिटी सेट हुई, प्रायोरिटी आपकी सेट है,
टाइमिंग आपके शेड्यूल के हिसाब से आप सेट करो, दोनों के मिक्स टाइम कौन सा सही है, उस हिसाब से आपने टारगेट सेट किया, जगह प्लेस नक्की किया, आप बैठ जाओ, जूम पे आ जाओ आप। पॉसिबल नहीं है तो यहां से, चंडीगढ़ में मेरी प्रायोरिटी थी, मेरी लिस्ट में था, मैंने फोन कॉल किया, संदीप जी क्या कर रहे हो? अरे यार मेरे को प्लान, आओ ना यार, आप बैठो ना यार। मस्ती कर ली मैंने इनके साथ, मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए, मतलब वो पता है ना, टारगेटेड, पता है ना प्रायोरिटी कौन है, उनको क्वालिफाई किया है ना मैंने मेरी लिस्ट में, लॉक कर दिया, बैठ गए, देख लिया, देखो अब आपके सामने है। ये इनवाइटिंग होता है ना, प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा रुक के सांस पांच लेने के बाद सोचो आप क्या टारगेट है आपका, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। मेरा किसी भी हालत में आप दो प्लान होना चाहिए, प्लानिंग करके, सोच के, प्रायोरिटी सेट करके, एक एक पॉजिटिव एनर्जी डाल के अगर आप करेंगे तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा सर। आपको सामने से लोग पॉपअप होंगे, दिखेंगे। पता है आपको, आपने सोचा कि मुझे क्रेटा लेनी है, आप लेने वाले भी हैं, आपने निर्णय भी कर लिया, आपने डेट भी फिक्स कर ली, बजट भी फाइनल हो गया, बैंक वाले को भी भूल गया, अभी ली नहीं है आपने। आप देखना सर, रास्ते में आपको सारी क्रेटा क्रेटा ही दिखेंगी। आप देखना, चेक करना, ट्राई करना सर। आप अगर मकान लेने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सर आप रेफ्रिजरेटर भी नया ब्रांड न्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायोरिटी कर रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइज में, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं वही आपको दिखाई देगा। अरे साहब आप जूते लेने की बात कर रहे हैं ना, आप सर्च तो करो, वही आएगा बार बार। एक बार सर्च तो करके देखो, यही साइकोलॉजी पे फेसबुक चलता है सर। आप अमेजोन पे जाके कुछ सर्च करो कि आपको बच्चे के लिए खिलौना लेना है, मुझे तो बहुत, तो फिर वो फेसबुक पे वही आता है, खिलौने ही आते हैं। ये साइंस, ये साइंस है सर, राइट। तो उसका हमें यूज करना है, ये सारी चीजें हैं ना, हमें इसका यूज करना है, राइट। एंड उसके बाद क्या होगा, शो द प्लान। अभी आप मुझे बताओ कौन सी फायर निकलेगी, प्लान बताओ तो सही। बंदा फ्लैट, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। आज की तारीख में मार्केट में इससे बढ़िया बेटर ऑप्शन पैसा कमाने का, कैरियर बनाने का, स्टेबिलिटी लाने का, लेगेसी क्रिएट करने का, आप एक ऑप्शन बताओ सर। मैं आपकी डाउनलाइन बनने को तैयार हूं, ओपन चैलेंज। है ही नहीं सर, है ही नहीं। कोई एक ट्रेडिशनल धंधा लाओ इससे बेटर, 5 सीए को बुलाओ आपके सिटी के, फीस मैं दूंगा सर, वो मुझे बताए इससे बड़ा प्रोजेक्ट इस दुनिया में, मेरे सामने बिठाओ सर आप, फीस मैं दूंगा। अगर वो, मैं फेल हुआ बताने में इनको ये प्रोजेक्ट बड़ा है, तो फीस मेरे को देने की नहीं तो आपको देने की। है ही नहीं सर। मेरा 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और मेरे बारे में काफी लोग जानते हैं, और अगर जो लोग नए हैं, जान सकते हैं किसी को भी, आपके जो सीनियर को पूछ के। तो मतलब अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स है सर, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं सही बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है तो आज आप यहाँ पे बैठे हैं। मैं ये बताता हूँ, मैं रोहित सर के पास गया वीजा लेने के लिए, ऊपर वाले ने प्रसादी के रूप में ये इतना बड़ा बिजनेस दे दिया। कितने बड़े ब्लेसिंग्स है, कितने 10,000 हाथ मेरे सर पे हैं ऊपर वाले के सर। मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं है सर इस दुनिया में। मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ। क्या आप मानते हैं सर? क्या आप मानते हैं अपने आप को ब्लेस? शो द प्लान। जो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर फायर है, जो ये सारे स्टेप कर रहा है, जो ये सर्कल से आगे बढ़ रहा है, इस सिस्टम का पार्ट है वो, उसके साथ
सैटरडे 2 बजे क्लोजिंग के बाद बैठना है नई वीक का एनालिसिस करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए नहीं, चैलेंज बताने के लिए नहीं। इसमें चैलेंज है ही नहीं कोई। सिचुएशन हो सकती है, इस दुनिया में चैलेंज नाम की कोई चीज नहीं है सर। चैलेंज वर्ड पता नहीं कहां से आ गया है। सिचुएशन हो सकती है, और एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको हैंडल किया जा सकता है। एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसका आंसर नहीं है। ये बात है। रिव्यूज करना जरूरी है ताकि आपका कोई डायरेक्शन, ये साइकिल के, और अपलाइन भी है इसी सिस्टम में है। तो वो आपको गाइड क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी कि भाई ये रास्ता कहाँ पे अटक रहे हैं, तो इसी एनालिसिस, इसी थर्मोमीटर से वो आपको मापेगी कि आप कहाँ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कहाँ जा रहे हो आप, कहीं भटक तो नहीं रहे हो आप। वो आपको सीधी लाइन में लाने की कोशिश करेंगी। तब कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर बैठी है, आप कहीं नीचे हैं। ऊपर से, पर्वत से नीचे देखोगे, नीचे से ऊपर दिखाई नहीं देगा सर आपको। फिर क्या करना है, लिवरेज करना है आपके आपको। लिवरेज कैसे करेंगे, हमारे द्वारा जितने भी हमारे फैमिली मेंबर जुड़े हैं, राइट, तो हमें एक मास्टरी लेनी है, एक स्किल्स लेनी है। जैसे प्लान बताने की स्किल्स है ना, जैसे हमने मास्टरी ली ना, वैसे ही, जैसे ही कोई भी हमारी सिस्टम की मीटिंग होती है, आप व्हाट्सएप में देखना आपकी जो एक्टिव अपलाइन है कितने मैसेज डालती है, फॉलो के कितने मैसेज डालती है। आज की मीटिंग का भी आपका मोबाइल चेक करो सर, मीटिंग स्टार्ट, बी रेडी, कौन करता है? आप करते हो आपके ग्रुप में? अगर नहीं करते हो, आप अपलाइन का बिजनेस कर रहे हो। आप जिस दिन ये प्रमोशन करना चालू कर दिया, आपने मीटिंग्स प्रमोट करना चालू कर दी, आपने संडे की मीटिंग्स प्रमोट करना चालू कर दी, आपने लोगों को बिठाना चालू कर दिया, आपने फोन कर करके फॉलोअप किया, खाली एक ही काम सीख लिया, एक बेस फाउंडेशन बनने के बाद लोगों को सिस्टम में प्लग करने की एक आर्ट आपने क्रिएट कर दी मेरे ख्याल से। बाकी की सारी फॉर्मेलिटी है। एक माहौल से ही बिजनेस बनता है, हमारा बिजनेस माहौल का है, हार्डवर्क का नहीं है। माहौल में ही आप दिल्ली कितने लोग आए थे, माहौल में कितने लोग आगे बढ़ गए, कितना पूरा, क्या बोलते हैं कि अंदर पूरा मैकेनिज्म चेंज हो गया, पूरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, राइट, वो पूरी प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। कितने लोगों की प्रोग्रामिंग चेंज हो गई सर? कैसे हुई? आप गए कैसे वहां पे? आपको किसने प्रमोट किया? कौन सी एनर्जी से प्रमोट किया? ताकि आप अपनी जेब से पैसा निकाल के, अपनी रिजर्वेशन करवा के आप 3 दिन वहां पे रुके। कौन सी एनर्जी थी उनकी? क्या वो एनर्जी आप में है? आपको प्रमोट करके वो अपलाइन, वो बंदा आपको दिल्ली तक ले जा सकता है, 3 दिन रुकवा सकता है जेब का खर्चा करवा के। आप संडे की मीटिंग में लोगों को नहीं ला सकते। आज की मीटिंग में कितने लोग हैं, कितनी, कुछ अलग एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नया नहीं समझा रहा हूं आपको। मेरा एंगल समझाने का अलग है। चीज तो वही है, 7 स्टेप वही है जो संदीप जी समझाते हैं, रोहित सर समझाते हैं, विमल सर समझाते हैं, हरप्रीत मैम समझाती है, आनंद जी समझाते हैं, जो भी हमारे कोर, पावन मैम जो हमारे संडे की जो विमेंस की जो मीटिंग्स लेती हैं, या हमारे और भी जो लीडर्स हैं जो अपनी मीटिंग करें, वो ही है, समझो, राइट। लेकिन अगर ये चीज आपने कर लिया, आप मुझे बताओ, ये बेसिक स्टेप आपने कर लिए, तो आपके एफर्ट्स हुए कि नहीं हुए? आपकी मेहनत लगी कि नहीं लगी? लेकिन मेहनत कौन सी करनी है? मैं मेहनत करता हूं, मैं गोल चला जाऊंगा, नहीं जा सकते। मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरी एफर्ट से 105 एसपी जनरेट होने चाहिए बस।
ये काम में मैंने अपनी काबिलियत हासिल कर ली और इसको मैंने लगातार करना चालू कर दिया, तो ये काम मुझे आया कि नहीं आया? मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? मैं अगर प्लान लेता हूं तो लोग ज्वाइन होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं जब मीटिंग करता हूं तब लोग कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है? मैं जब प्लान बताता हूं, वन ऑन वन करता हूं, तो लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? मेरा टारगेट क्या है? 105 पीवी मेरे। एक 105 तो एक बंदे को ज्वाइन करवा के स्टार ऑफ द वीक बना देता हूं। आप बना सकते हो। कितने सारे लोग आप में से एक प्लान बता से 100 पॉइंट से आज ज्वाइन करने कितने लोग सीख गए हैं? सवाल है कि आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया। जो भी नए लोग हैं, ये हमारी बात थोड़ी एक मैच्योरिटी की बराबर लगती होगी कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट कर ले। इसकी पिक्चर लेनी है तो ले ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। स्टेप यही है। इस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो स्टेप्स है ना सर, आप कोई भी एक चूज करो, वहां पे अगर आपको टॉप करना है तो यही स्टेप है सर। लाइफ में कुछ भी करना चुन लो, अगर आपको उस फील्ड में टॉप जाना है तो स्टेप यही है सर। हमारे ईशाना बिजनेस में सफल होना है तो स्टेप कोई शॉर्टकट नहीं है सर। स्टेप। फिर क्या करना है? आपको गाड़ी चलानी आती है, चार लोगों को आपको पास में बैठना है, उसके लिए गाड़ी नहीं चलानी है, उसे सेठ नहीं बनाना है। समझो आप, मैं बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, एक इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको गाड़ी चलानी, आपका सबकॉन्शियस माइंड गाड़ी चलाता है ना, राइट? आपके चार लोग सबकॉन्शियस माइंड से चलाते हैं नहीं चलाते? आप बगल में बैठ जाओ, पास में बैठो, उनके लिए आप प्लान मत बताओ, उनको पास में बैठो, उनको सिखाओ, ये सिस्टम सिखाओ, ये स्टेप सिखाओ, उनको अभी अभी आप टीचर बन जाओ। चार लोगों को अगर ये आपने डुप्लीकेशन करवा लिया, पता है क्या होगा? मास्टरी किसकी है पता है? बहुत सारे लोगों इनकी मास्टरी है। चार लोगों को आपने ये डुप्लीकेशन करवा दिया सर, इतना ही रोल है सर आपका। आपने जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया जरूरी नहीं है, जब तक वो फायर वाले लोग मिलेंगे उनके लिए काम करो। जब आपको लगता है, आप एडिफाई करते हो इसको, आइडेंटिफाई करते हो इसको, तो इसके उसके साथ आपके माहौल में ले लो। और वो बंदा अपने साथ, अपने आप, अपने पैरों पे, अपने पाँव पे, अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने सपनों के लिए काम करेगा, राइट? रोहित सर ने मेरे लिए प्लान बताए 3 दिन के लिए, उसके बाद आज तक एक भी प्लान मैंने उनको प्लान बताने के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं किया सर। मैं एक जूम मीटिंग करता हूँ, आप प्लान बताओ, या एक मैं यहाँ पे आपको बिठाता हूँ। हाँ, मेरे लिए कोई दिल्ली में है, कोई कहीं और गए हैं, वो गए हैं, इंदौर गए हैं, तो इंदौर अगर है मेरा कोई प्रोजेक्ट, मैंने उनको वहां पे भेज दिया तो उन्होंने प्लान बताया, वो अलग बात है। रेडी हैं क्या आप? 105 एसपी सर्कल खुद करना सीखो 1 वीक के अंदर, और चार लोगों को सिखाओ, और मैचिंग करके देखो आपकी वीकली इनकम कहाँ पे है। और ये काम आपने किया, स्ट्रिक्टली किया, एवरी वीक किया, आपके चार लोगों ने यही काम एवरी वीक किया, तो आपकी स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? आपकी स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई? गोल्ड कैसे बनोगे? 1000 एसपी लगातार अगर होंगे तो गोल्ड बनेंगे, तब लगातार करेंगे कि जब आप शेरर बनते हैं, 4 वीक लगातार करो, तो गोल्ड की सोचो। पहले शेरर तो 4 वीक कंटिन्यू करो, उसके बाद कुछ मोमेंटम आया, अब बिलीवर बन गए, तो कोशिश करो ना कि उससे नीचे नहीं जाओ। धीरे धीरे करके स्टेप चढ़ो ना। डायरेक्ट जंप मारना है, लोगों को डंप करवाना है, परचेजिंग करनी है, अपना गोल अचीव करना है, ये बिजनेस में आप बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते सर।
ये अगर आपने यहाँ पे अगर आपने सही कर लिया, ये सारी चीजें अगर आप समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये काम वाकई में दिल से अगर आपने इस चीज को समझ लिया, इस सर्कल को अगर आपने समझ लिया, तो ये गाड़ी चलेगी सर, ये स्पीड में आएगी जहां पे ले जाना चाहे। आपको डायरेक्शन मिल गई है ना, आप क्लियर है ना, यहाँ पे पहुंचना है ना, ये आपने पकड़ लिया ना प्रोसेस। गोल पे जाने का प्रोसेस क्या है? लगातार लगातार लगातार, जो लगातार करते हो, चार को लगातार, चार को लगातार, उनको सिखाओ, वो चार चार को लगातार 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 लगातार, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आएगी कहां से? डेली दो प्लान बताने से। दो प्लान बताएंगे तो 105 एसपी होंगे, वो होंगे तो हम डुप्लीकेट कर पाएंगे, वो डुप्लीकेट कर पाएंगे तो वो गाड़ी आगे चलेगी, तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी। जम, एक बार ऊपर गए आप सीधे एग्जीक्यूट। रुक नहीं, कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सर। रोहित सर हमेशा बताते हैं कि सर्ट का पहला बटन सही करो। हमारा पहला बटन क्या है? सेरर एंड बिलीवर, लगातार मेंटेन करना। उसके लिए क्या काम करना है? प्लान को सीखना, शुरुआत वहीं से होगी। प्रैक्टिस करना, प्लान करना। वो करेंगे कौन? ड्रीम जिसका क्लियर है वो। हर्डल्स जिसका बड़ा है, वो हर्डल्स आते ही रहेंगे जीवन में, वो उससे बाहर निकलने वाला ही नहीं। अब मुझे बताओ यूसना की हमारी ये गाड़ी चलेगी कि नहीं, डायरेक्ट हमारे गोल पे जाएगी कि नहीं जाएगी? अब आप मुझे बताओ, अब सोचो तो सही सर। कौन रोक पाएगा सर आपको? कौन सी ऐसी ताकत, कोई है ही नहीं सर ताकत आपको रोकने वाली। जब तक आप अपने आप को खुद रोकेंगे तभी आप रुकेंगे, बाकी मुझे रोकने वाला कोई नहीं है सर। दुनिया की कोई ताकत, कोई भी चैलेंज, कोई भी कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा। कोई आए नहीं आए, एक ग्रुप आया, दो ग्रुप आया, चार आके चले गए, छोड़, किसी ने छोड़ दिया, किसी की भैंस को बीमार हो गई, किसी की बुखार आ गया, किसी बिल्ली बिल्ली को जुकाम हो गया, पता नहीं मेरे को। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारे लिए रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है। आप जिस लाइट का यूज कर रहे हैं ना सर, कितनी बार फेल हुए थे? ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हजारों एग्जाम्पल है। किसी भी सफल व्यक्ति को देखो आप, कितनी बार फेल हुए हैं। ये एक प्रोसेस है सर। एक भी शो द प्लान आपका फेल नहीं जाएगा। किसी भी, मेरे को संदीप सर दिख रहे हैं, संदीप सर की इनकम जो भी है गोल्ड की, राइट, जो भी अभी जो जो गोल्ड हो चुके हैं, रूबी हो चुके हैं, राइट, तो मेरे ख्याल से वीकली 3 से 5 लाख की इनकम है, राइट, अगर हम मिनिमम भी माने तो प्लान के अनुसार। तो 3 लाख रुपया महीने का, तो एक दिन का कितना? और इसके लिए, ये फाउंडेशन डालने के लिए इन्होंने 1.5 साल में कितने प्लान बताए? वो प्लान एक, अच्छा, इसमें से कितने लोग जुड़े और कितने नहीं जुड़े? जो नहीं जुड़े उसकी नंबर क्या है, उसको डिवाइड करो इस इनकम का। एक प्लान बताने का कितना पैसा मिला? एक नो सुनने का कितना? इसमें नो सुनने का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पैसा मिलता है सर। नो सुनने का पैसा आज संदीप सर को मिल रहा है, आज हरप्रीत मैम को मिल रहा है, आज विमल सर को मिल रहा है, जितने भी टॉप हमारे हैं जो टॉप 20 में है, वो सब एंजॉय कर रहे हैं। नो सुनने का भी पैसा मिल रहा है। गिनो आप कैलकुलेशन, बाद में मिलते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप अपनी अपलाइन को पूछ लेना कि इसमें नो शो को भी पैसा मिलता है। यस, नो सुनने का भी पैसा मिलता है हमारे बिजनेस में, पता है आपको। निकल रहा है एवरेज, और जो इनकम आ रही है 2-5 लाख की, राइट, और कितने नो शो सुने, वो इनकम डिवाइड कर दो आप उसके हिसाब से। तो एक नो सुनने का भी पैसा मिलता है सर हमारा। समय बलवान है सर। एक लेग बैठ गई, समय बलवान है। लोग आके चले गए, समय बलवान है। आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे लोग, आपको मजबूत करके जाएंगे।
कंपनी तो चलने वाली है, 100 करोड़ लगा दिए हैं, और भी लगाने वाले हैं। 15 साल का कंपनी का विजन है, चाइना को बीट करना, इंडिया को एशिया का हब बनाना। मेरे साथ या मेरे बिना ये होने वाला है, समय बताएगा। आपको तय करना है आपका समय सर। आपका समय, आने वाले 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, आप कहां पे हो गए, ये तय कौन करेगा सर? आप खुद। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद। नहीं आपकी फैमिली, नहीं आपकी अपलाइन, नहीं आपकी कंपनी, नहीं आपके चैलेंजेस। आप खुद। डिसीजन आपको लेना है सर। एक लय लानी पड़ेगी सर। एक अलाइनमेंट की बात करते हैं ना हमारे पावर मैन, अलाइनमेंट लानी पड़ेगी। एक हारमोनी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक म्यूजिक अंदर से बजाना पड़ेगा। एक ताल लाना पड़ेगा। बेसुरा ताल नहीं। जब आप प्लान बताते हैं तो अंदर से क्या निकलना चाहिए? कि म्यूजिक निकलना चाहिए। क्या वो म्यूजिक एंजॉय करना चाहेंगे? छोटा सा ही तो काम है। 105 एसपी सर्कल, 105 एसपी सर्कल, 7 स्टेप। ये हमारी गीता, भागवत, कुरान, जो भी आप बोलो, बाइबल, जो भी बोलो, जो भी नाम देना है दो, ये आपको आपके सपनों तक ले जाएगी सर। क्या बताऊं? कौन है? संदीप जी? कौन है और? यस सर। ऐसा लगता है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं इसमें, खो गए हैं। यस यस। मैं एक चीज सोच रहा था, जितना ह्यूज पोटेंशियल इनकम का, सक्सेस का, लाइफ को जीने का, फैमिली के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने का, अपने नाम को मीनिंगफुल बनाने का यूसाना में हमारे पास है। और उसके लिए जितना जबरदस्त सपोर्ट है, जो वैल्यू एडिशन है, जिस तरीके की एजुकेशन है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का एक कल्चर है, मैं ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं उस तरीके का लेने वाले के मन में वो ड्राइव। शिव खेड़ा को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि आज के समय में जितनी ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, मिलियनर बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। बट आज लोगों के अंदर जो हंगर है, जो कमिटमेंट है, जो करेक्टर है, जो वैल्यूज है, जो ड्राइव है, वो इतनी कम होती जा रही है। वर्क एथिक्स इतना कम होता जा रहा है। शिव खेड़ा बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी पीपल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया है। मैं भी ये देख रहा हूं कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी इनकम पोटेंशियल। सोच लो, बाहर नौकरी में हम और आप, मैं तो अपनी बात सोचूंगा कि 5 लाख रुपए महीने की इनकम के बारे में कौन सी नौकरी मुझे मिल सकती है, सोच भी नहीं सकता मैं। बिजनेस से मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाना है और उसको लेगेसी बनाना है, मैं सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पे ये काम 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल में पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, दिख रहा है, प्रूवन है। बट उसको पाने के लिए जो भूख है, जो ड्राइव है, जो कमिटमेंट है, वो मैं बहुत ज्यादा मिसिंग देख रहा हूं लोगों में। वही लोग 50,000 की नौकरी के लिए अपना घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, देश तक छोड़ देंगे। हम लोग 2023 में दुबई गए, और वहां पे हमारे एक दोस्त के थ्रू लोकल इंडियन, जो इंडियन लोग हैं, गुजराती भाई थे, उनके पास जाने के लिए लेके गए वो, कि एक बार देखो भैया, एक रूम में
जैसा ये मेरा ऑफिस रूम है, इतना सा रूम है, छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है जिसको मैंने ऑफिस बनाया है। इस रूम में, छोटे से रूम में, दोनों साइड बेड लगे हुए हैं और 1 2 3 4 8 लोग उसमें रह रहे हैं। और हैरान तो तब हो गया जब मैं मिडिल बर्थ में एक कपल को देख रहा हूं। वही बेड, Right. वही बेड, एक बेड उनका घर है। तो हमने बोला भाई यहाँ पे क्यों रह रहे हो? पैसे कमाने सर, 50,000 मिल रहा है। पैसे कमाने सर। आप पैसे सोचो तो सही, आप पैसे कमाने के लिए किस हद तक जाते हैं। लेकिन जब हम युसाना के थ्रू ये सब चीज देख रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि हमें लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए और उनके अंदर भूख पैदा करने के लिए कितनी मेहनत लग रही है। रवि भैया को अगर कॉर्पोरेट में सुनना है, जितनी बड़ी सक्सेस इनकी है, बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर है, इतनी बड़ी माइलस्टोन इन्होंने क्रिएट, इनको सुनना है, तो लोग किस लेवल तक की फीस पे करने को तैयार है। और हमारे लोग एक छोटी सी कीमत चुकाने को तैयार नहीं है कि सीखने की वो एक भूख दिखा दें कि हमारा कैमरा चालू और मेरी डायरी। मैंने अभी देखे हैं, आप तो 3 पेज भर दिए। ये सेशन मैंने शायद 10 बार अटेंड कर लिया होगा, लेकिन हर बार मुझे कुछ नया मिलता है, हर बार मुझे नया डायलॉग मिलता है, नया लर्निंग मिलता है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक ऑप्शन ये कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को जगाने के लिए लगा दें, उनके अंदर भूख पैदा करने के लिए लगा दें और उनको विश्वास दिलाने के लिए लगा दें। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है, हम तेजी से उन लोगों तक पहुंचे जिनके अंदर वो भूख भी है, जिनके अंदर वो कमिटमेंट भी है, जिनको करना भी है और जो कर भी सकते हैं। फटाफट 4 लोगों को ढूंढते हैं, माइलस्टोन क्रिएट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में मेरे बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ऐसे लोगों के चक्कर में अगले पल में अगर गाड़ी रुक जाती है लाइफ की, तो लेगेसी में अपने बच्चों को उतनी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैं अपना समय लगा रहा हूं उन लोगों को जगाने के लिए जिनको करना नहीं है, जिनके अंदर वो ड्राइव नहीं है, जिनको भूख नहीं है। नहीं सर, मेरे ये चैलेंज है। हमारे घर में काम वाली आती है, 3 5 हजार रुपए लेती है। आज तक कभी मैंने नहीं सुना है कि मेरा चैलेंज है। अगर उसको छुट्टी भी लेनी होती है ना, महीने में 2 3, तो धीरे से बोलती, मेरे पास बोलती है, उसको पता है भाभी फिर मना कर देगी, भैया मैं छुट्टी ले लूं 3 5 हजार रुपए के लिए। मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं सुना। लेकिन यहां पे मैं देखता हूं, नहीं सर सुबह मेरी नींद नहीं खुलती तो उठने का तकलीफ है, सर मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, सर मुझे मैसेज ज्यादा आते हैं सर पूरे महीने में मैं 5 हजार रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता सर, पूरे महीने में मैं 2 प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर सकता हूं। आई एम सॉरी, मैं इस पॉइंट पे इस समय बात कर रहा हूं, इतनी पावरफुल ट्रेनिंग के बाद मैं अंदर से हिल गया हूं। और मुझे एक चीज समझ में आ गया है, यूसाना तो 3.5 3 करोड़ कमाने वाले पैदा कर चुके हैं, और मैं इतने बड़े बड़े ड्रीम देख चुका हूं, विजन बोर्ड में लगा चुका हूं, लेकिन इस तरीके से तो पूरे नहीं होंगे। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 20 सालों से लगे हुए हैं। हर बार वो बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियां कर रहे हैं, हर बार बड़े सपने की बात कर रहे हैं, डायमंड की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्क एथिक्स अगर देखें तो डायरेक्टर को मेंटेन करने का नहीं है, बिल्डर को मेंटेन करने का वर्क एथिक्स नहीं है। यूनिवर्स का नियम बहुत क्लियर है, कारण और परिणाम का नियम। अगर हमें वो परिणाम चाहिए तो हमें वो कारण डालने पड़ेंगे। से संभव जितना सपोर्टिव सिस्टम है, इमेजिन भी नहीं कर सकते सर, जो क्वालिटी, जो वैल्यू, जिस लेवल की एजुकेशन यहां पे मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टैंडर्ड को कॉलेज की पढ़ाई हो रही है और उनके ऊपर ऊपर से निकल रहा है, या उनको उसकी वैल्यू इतनी खत्म हो गई है कि ये तो बोलते ही रहता है। इनका काम क्या एवरी थर्सडे को आके बोलना है, इनका काम क्या एवरी ट्यूसडे को आके। आप इमेजिन कीजिए, लास्ट ट्यूसडे को रवि भैया का क्या क्या हेल्थ सेशन था।
लास्ट संडे को 220 नंबर्स हमारे पास थे। ये माहौल इस लेवल पे जा रहा है, बट ड्राइव मिसिंग है सर। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इन है, अगर आप वाकई यूसाना बिजनेस के लिए सीरियस है, प्लीज ड्राइव के लिए ऊपर कुछ चाहे आप सप्लीमेंट ज्यादा ले लो, कोपा प्राइम ज्यादा ले लो, कोर एसेंशियल ज्यादा ले लो, कोपा प्राइम कोकिनोन ज्यादा ले लो, जिससे आपके अंदर वो जोश आए, एनर्जी आए, कमिटमेंट आए। जिंदगी भर का काम हमें 3 साल में निपटा देना और हम उसको भी धीरे धीरे कर रहे हैं, यार क्या बात कर रहे हो। जिंदगी भर का काम, मैंने कहा मैं नौकरी में 5 लाख सोच नहीं सकता, ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं 5 लाख की लेगेसी सोच नहीं सकता, यहां मुझे सामने दिख रहा है। हम आपको कह रहे हैं हमने कर दिया सर, आप आ जाओ, हम आपको हाथ दे रहे हैं। प्लीज यार, अपना मोबाइल को पोस्टपेड कराओ, लैपटॉप ले लो, वाईफाई लगा लो, सीरियसली कर लेते हैं। इस मोबाइल से, इस लैपटॉप से, आपके घर से, हम पूरे इंडिया में नहीं, अगस्त से लेकर ग्लोबल आईडी शुरू हुई, पूरी दुनिया में बिजनेस कर देंगे, लेकिन आपके बगैर नहीं हो पाएगा। आपका बिजनेस आपके बगैर, आपकी अपलाइन का हो जाएगा, से संभव का हो जाएगा, यूसाना इंडिया का हो जाएगा, लेकिन आपके बगैर आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। आपके बगैर आपके घर में लेगेसी नहीं आ पाएगी, और हमें दुख रहेगा। कुछ ऐसी स्टोरी होगी है भैया इन बिटवीन, कि उन्होंने 4 दिन पहले ज्वाइन किया और आज वो दुनिया में नहीं है। कुछ स्टोरी ऐसी होगी है जिनको 1 साल पहले ज्वाइन करा था, वो कह रहे सर टाइम नहीं है, करना चाह रहा हूं टाइम नहीं है, और आज 1 साल बाद पता लगा वो दुनिया में नहीं है। माय गुडनेस, 1 साल में अगर 4 वर्किंग पार्टनर होते और नीचे बिलीवर बिल्डर जैसे होते तो भी सिस्टम उनको संभाल लेता। प्लीज प्लीज इसको सीरियसली लेते हैं, मिलके करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस सर, कोई अपनी फीलिंग शेयरिंग करना चाहता है? जीवलाल जी हैं, भरत भाई हैं, और भी सीनियर हमारे कोई एक दो लोग अगर कोई बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। यस सर। हेलो। यस सर, यस सर। तो इन भाई, ये आपका सेशन मैंने दोबारा सुना, मगर आज मैं बाहर से आया, थोड़ी आंख लग गई। एसी चल रहा था तो मैं सो गया। रवि संदीप भाई का फोन आया, भरत भाई कहाँ हो? अगर मैं आया एटीट्यूड के टाइम पे, आपने एटीट्यूड का सब्जेक्ट लिया था, तब मैं ज्वाइंट हुआ। अगर मैं ज्वाइंट नहीं होता, संदीप भाई मेरे को रिमाइंड नहीं करते, तो मैं आज कितना बड़ा लेसन लर्निंग मिस कर जाता। ऑफ कोर्स मैंने 2 बार ये सुना है, मगर आज का जो है, बार बार, जैसे संदीप भाई ने बताया, मैंने नोट भी लिख लिया, पूरा चक्कर लिख लिया। राइट। ड्रीम, बिलीफ, एटीट्यूड, कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रायोरिटी, बेसिक, 105 एसपी सर्कल। क्या बात है सर। ये बार बार करने की जरूरत है, और ये आपने आज रिमाइंड कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मैच्योरिटी है ना, वो कहीं नहीं है सर। रियली रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलाम। जीवलाल जी कुछ राइट। बताना चाहेंगे? हमारे जीवलाल भाई फायर्ड अप है, आग है, आग, आग का गोला। जीवलाल, जीवलाल भाई है, कहीं दिख रहे हैं? मैंने अभी कहीं तो देखा था। थे, मीटिंग में थे, मगर ठीक है, कोई आई बात नहीं, थिंक कोई बात बाहर है। एनीवन और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? शिखर समिट का एक्सपीरियंस आपके पास है, यहाँ के कल्चर का कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है, एनीथिंग एनीवन शेयर करना चाहता है तो ये कम्युनिटी के लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है। भानु सर कुछ शेयर करेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर। और रियली सर, रवि सर का बात सुनते हुए, मैं स्टार्टिंग से, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने पहली बार मैंने मीटिंग अटेंड किया, तो पहले तो ये था कि जिला सर ने मुझे बताया कि रवि सर कौन है। तो पूरी कुछ हिस्ट्री बताया मुझे, तो मैं बोला, मैं बड़ी प्राउड हुआ कि इतने महंगे महंगे, इतने बड़े बड़े लोग ईशाना के अंदर में, मतलब इस बिजनेस को शुरुआत किए हैं। ये बड़ी प्राउड वाली बात थी मुझे। तो हम लोग स्टार्ट करे थे जब प्रीवियस कंपनी में, एकदम सिंपल सा लोगों के साथ में स्टार्ट किए हुए थे। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि आप जैसे लोगों को, तो हमें बड़े प्राउड हुआ कि यस, ईशाना मतलब ये है कि बहुत एक हाई क्लास का, हाई लेवल के लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब एक टीम पे ऊपर, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे।
तो मुझे सीखने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने रवि सर का मैंने यूट्यूब में जाके देखा, मैंने संदीप सर का यूट्यूब में जाके देखा, सर आपका भी। तो मैंने ये सारी चीजें मैंने मतलब स्टडी करना स्टार्ट किया। मुझे बहुत प्राउड हुआ कि यस, मतलब यहाँ पे मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग वर्क कर रहे हैं। तो मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया और मैं भी आप लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं बहुत हर मीटिंग को बहुत सीरियसली मैं सुनता हूँ और मैं इन्हीं चीजों को कॉपी करके बिल्कुल कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट करके मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ तो मैं इसके कॉपी करना डुप्लीकेट करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट किया और रियली बताऊं सर कि मेरा तीसरा टिकट कोडिला क्रूज का अभी फाइनल इस सप्ताह में फाइनल हो रहा है मेरा। अभी सैटरडे को डन हो जाएगा। तो मैंने मीटिंग लिया सर। आज करीब 20 से 25 लोगों का मैंने मीटिंग लिया। मैं अपने लेवल से भी मैं मीटिंग लेता हूँ। मेरे अपलाइन झारखंड में है जिमिस्टर जुलाल सर। मैं सैल्यूट करता हूँ जुलाल सर को। तो वो वहां पे है और मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे हूँ। और मेरी पूरी टीम टोटल आज की डेट में मैंने आज पूरे 2.5 से 3 घंटे हमने आज मीटिंग लिया। बहुत ही सुपर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स, अन्य कंपनियों के लीडर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और साथ ही साथ अभी 31st को मैंने एक सेकेंड मीटिंग अपने अरेंज किया है लगभग 50 लोगों का। उसके बाद 7 जून को मैंने अरेंज किया हुआ है मेरे अपलाइन मिस्टर जुला सर को मैंने इनवाइट किया है रायपुर में छत्तीसगढ़ में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बिजनेस है, मुझे करना चाहिए, मुझे अरेंज करना है, मुझे अपने लोगों को मेंटेन करना है, मुझे सिखाना है। तो मुझे खुद को भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो सर ये सारे प्रोग्राम सारी मीटिंग्स को मैं देख देख के पूरे सीखता हूँ और मुझे बहुत प्राउड होता है कि यस आप जैसे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं थैंक्स सर। नेक्स्ट संडे 11:15 बजे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक्स सर। और ये सैटरडे को थैंक यू। नए नए स्टार ऑफ द वीक, सुपर स्टार ऑफ द वीक क्रिएट करेंगे और सैटरडे मॉर्निंग को हम जबरदस्त धमाल करेंगे। राइट? ओके, यस ऑल सर। द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक्स सर। थैंक्स सर।